حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا واقعہ۔ عرب کے شہر میں ایک فالس نام کا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں رکانہ نام کا ایک مشہور پہلوان رہتا تھا جو بہت ہی طاقتور اور وشال شریر کا تھا۔ اس زمانے میں رکانہ کو بہت ہی بلشالی مانا جاتا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ہر مقابلے میں اس کے آگے ہار مان لیتے تھے۔ عرب میں اس کی بہادری کے چرچے ہر جگہ تھے۔ ایک دن رکانہ پہلوان اپنے گاؤں والوں کے ساتھ کشتی کو لے کر بات کر رہا تھا۔ تبھی وہاں ایک اجنبی آیا اور بولا، تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان پر قرآن اتاری گئی ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اور ان کی بات سن کر لوگ اسلام دھرم کو قبول کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ان کی بات سننی چاہیے۔ یہ سن کر رکانہ پہلوان سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اگر ان کا مذہب سچا ہے اور وہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے تو انہیں مجھ سے کشتی لڑنی ہوگی۔ اگر وہ ہار گئے تو یہ ثابت ہو جائے گا وہ ایک عام انسان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام دھرم کو قبول کر لوں گا۔ یہ کہہ کر رکانہ پہلوان اپنے گھر آ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام یزید تھا۔ وہ بھی رکانہ پہلوان کی طرح بہت بہادر تھا۔ اور رکانہ پہلوان بولا، مکہ میں اس سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ویکتی ہے جو انہیں بہت بڑا جادوگر بتا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں مکہ جا کر ان سے ملوں اور ان سے کشتی کروں رکانہ کی۔ یہ بات سن کر یزید بولا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ مکہ چلوں گا۔ میں بھی واستو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے۔ کچھ دنوں بعد رکانہ اور اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ کی اور روانہ ہو گئے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد اور تپتے ریگستان کو پار کرنے کے بعد وہ آخر کار مکہ پہنچ گئے۔ لیکن مکہ پہنچتے ہی رکانہ کے دل کو ٹھنڈک اور اچھا محسوس ہونے لگا۔ اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا مکہ کے لوگوں چہرے پر رونق اور خوشی سی ہے۔ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کسی کے رحم و فضل و کرم سے ہے، مکہ کی ہے، یہ خاص جگہ ہے۔ رکانہ اپنی بیٹے سے بولا، بیٹا یزید یہ کوئی خاص جگہ لگ رہی ہے، میں اپنے اندر ایک انوکھا سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یزید نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، بابا مجھے بھی سکون محسوس ہو رہا ہے، ایسا سکون اور خوشنما ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سمے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ملیں گے؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ رکانہ نے کہا کہ میرا نام رکانہ ہے، میں ایک مشہور پہلوان ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس وقت مسجد میں موجود ہیں۔ یہ سن کر رکانہ اور یزید مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ویکتی شانت اور نورانی چہرے میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چہرے پر ایک ایسی نورانی مسکان تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سبھی کا سواگت کر رہے ہیں۔ رکانہ دیکھتے ہی سمجھ گیا یہ وہی ویکتی ہیں جن کے بارے میں سنا تھا اور ان کے پاس گیا، آدر پوروک سلام کرتے ہوئے بولا، ہے محمد تم وہی ویکتی ہو جن کے بارے میں دوسروں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں تم نے صحیح سنا ہے، لیکن تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ رکانہ نے بڑے گرو سے کہا، میں بہت دور سے آپ کی تلاش میں آیا ہوں، میرا نام رکانہ ہے اور میں اس دور کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں۔ اب تک میں نے کسی بھی کشتی میں ہار نہیں مانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رکانہ پہلے بیٹھو، ہم باتیں کریں گے۔ رکانہ سوچنے لگا کہ یہ شخص مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی نرم لہجے سے کہا، رکانہ اللہ سے ڈرو، تمہارے شریر میں جو طاقت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے جس نے تمہیں اتنا بڑا پہلوان بنایا ہے۔ اسی مہان اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور اسی پر ایمان لاؤ اور مجھے اس کا رسول مانو۔ رکانہ نے حیرانی سے کہا، ہے محمد تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو صرف یہاں کشتی لڑنے آیا تھا۔ میں نے سنا ہے تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، تمہارے پاس کوئی خاص طاقت ہے، اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ کشتی کروں گا، لیکن تم مجھے اسلام اپنانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ دیالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، میرے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہو لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، کشتی لڑنا پہلوانوں کا کام ہے اور میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ رکانہ ہنستے ہوئے بولا، ہے محمد میں تمہاری یہ باتیں سننے نہیں آیا، میں نے سنا ہے تم بہت طاقتور ہو، تمہیں جادو بھی آتا ہے، اگر تم اللہ کے سچ میں رسول ہو اپنی طاقت سے مجھے کشتی میں ہرا کر دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، رکانہ تم ضد کر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ ایک شرط پر کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ نے اتسکتا سے پوچھا، کیا
क्या शर्त है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो इस्लाम कबूल करना होगा, मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोचने लगा, यह एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ और गजब की ताकत के साथ यह मामूली इंसान टिक नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ, आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर ये मेरी बराबरी कैसे करेंगे? ये सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और फिर घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मानूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती का एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों के लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वह यह भी देखना चाहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। और मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रुकाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे जोश के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ, वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, है रुकाना, तुम हार चुके हो, अभी तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो, क्यों नहीं हार मान लेते और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, यह संयोग था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इस बार भी तुम हार गए तो अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबला पर जम गईं। रुकाना ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरी कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुकाना, तुम्हें अभी यकीन नहीं हुआ, मान लो अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार हार मानने नहीं दे रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मैंने कभी किसी भी कुश्ती में हार नहीं मानी कि मैं एक ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, एक आखिरी मौका दो, हमारे नबी तो रहमतुल्लाह अलमीन हैं। फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक आम इंसान नहीं है, अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे यकीन हो गया है, आप अल्लाह के सच में रसूल हैं। इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता है। अल्लाह ने जो मुझे ताकत दी है, आज तुम उसी की वजह से हार गए, और यह भी अल्लाह की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं हराने की ताकत नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। खुशी और सुकून के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का जिंदा चमत्कार है। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का एक बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, है मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया। आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए, दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया।
अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेना है और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक बार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था, यह कैसे संभव है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक और मौका दिया कि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन से इतनी जोर से टकराया जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजीद ने फिर से उठने की कोशिश की। उसके पैरों में ताकत नहीं बची। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम वाकई में बहादुर हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। अभी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है। यह सुनते ही यजीद की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा है, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सामने कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे मक्का में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। है मोहम्मद, आपने यह दावा किया है आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं, क्या अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ दिव्य संदेश आता है? यह सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो करना नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो? उसे युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना स्पर्श के उसे पेड़ को यहाँ बुला लो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, और तुम बस उसे पेड़ के पास जाओ और कह दो तुम्हें अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ उसे पेड़ के पास गया और बोला, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। और इतने में ही पेड़ कांपने लगा और लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ें बाहर निकाल ली है। धीरे धीरे कूदता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और युवक बोला, यह तो कोई जादू है, तुम वाकई में नबी हो तो इस पेड़ को अपनी जगह भेज दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम अपनी जगह पर लौट जाओ, और पेड़ अपनी जगह वापस चला गया। यह देखकर युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने केवल इस्लाम ही नहीं कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को इस्लाम कबूल करवाया। अगर वाक्य अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।